ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਮਾਛੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਬ੍ਰਿੰਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜੌਬਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਜੌਬਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਰੂਟਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਦਾ ਚੌਹਾਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਦਾ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। Thank you so much for calling me. I really appreciate it. ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਰਿਦਾ ਚੌਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, KC ਚੌਹਾਨ। ਔਰ ਰਿਦਾ ਐਜ ਏ HRM ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। HR ਦੀ ਜੌਬ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ HR ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਤੇ ਰਿਦਾ ਚੌਹਾਨ ਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ ਰਿਦਾ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਰਿਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ HRM ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? So basically, I'm an HRM professional. I have a bachelor's degree in honors in human resources management. That is an amazing field. It's an amazing industry. I'm also a motivation speaker. I'm also a blogger. And basically, in human resources, हमारा काम यही होता है कि लोगों को jobs दें और लोगों के लिए available रहें और लोगों को tips and tricks दें. Because the industry is very big in IT and in business. There's so many sectors out there, even in supply chain. So we have jobs for everybody, and I think we all deserve those level of jobs. It's just meeting those right people. वो ठीक इंसान से मिलना जरूरी है, वो ठीक एक recruiter से मिलना जरूरी है जो आप में वो talent देख सके, वो आप में मतलब वो आप में skill set देख सके। तो हम सबको जॉब देते हैं और यही हमारा काम है। ਅੱਛਾ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ HR ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ EMPLOYEES ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEE ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਰਿਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੌਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? I think फिलहाल टाइम बहुत सख्त है हम सबके ऊपर because the pandemic is really bad. But at the same time, we have 214 days and 7 months left. And all like the companies are very lenient on your skills and on your qualifications. Time थोड़ा मुश्किल है, but hiring अभी हो रही है, but थोड़ी slow हो रही है। और जैसे अभी हम Skype पर बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो all the interviews are moved to Skype and Zoom, and also the phone screens and also the prep calls are all online now. So things have changed, but hiring अभी हो रही है, but थोड़ी slow पर है. But never give up. There is a job for every single body. You're just working on yourself, and this is the time to restart, to reset and to refocus, because बहुत जल्दी बहुत कुछ खुलने वाला है। और हमें आज भी फोर्ड ने कहा है कि
COVID-19 का phase 2 is going to start on Friday. So hopefully we will see that Toronto is going to reopen. So just be ready. Just be ready to start work. ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? I think the main चीज हम लोग पीछे छोड़ आते हैं कि जैसे जैसे एक इंसान के पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो वो अपना एक्सपीरियंस रेज्यूमे में लिखें आप। जैसे पाकिस्तान से एक्सपीरियंस, मिडिल ईस्ट एक्सपीरियंस है, लंदन से एक्सपीरियंस है, वो आप लिखें। बिकॉज हमें लाइक कैनेडियन एक्सपीरियंस भी चाहिए, बट back home experience also has the same value as Canadian experience has. And at the end of the day, your resume is your first impression. जैसे आपका resume है वो आपकी पहचान है, आपकी जो content है, आपको जो writing skills है, सब उसमें show होंगी कि आपने कितने साल काम किया है, आपकी मतलब आपकी like डिग्री कौन सी है। And मैं एक चीज आपके एक प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी, resume should be 2 to 3 pages, because लोग 3 to 4 pages कर देते हैं तो पढ़ना मुश्किल होता है। Or every single recruiter reads a resume. The resume is your first impression, and make sure it's well done. And आपने जैसे references की बात, yes, references is a good thing, but then लोगों को उनके बलबूते पर भी jobs मिलती हैं, उनके skill set के base पर मिलती हैं, उनके पास experience के base पर मिलती हैं। तो it's all about believing in yourself. It's all about knowing your worth at the end of the day. References are very good to have. You should have at least 2 to 3 references. I mean, references are also people who know you well. Like, I mean, it can be a manager, it can be a co-worker, it can be a friend. But at the same time, believe in yourself कि जो आपने इतने साल काम किया है, जो आपके पास 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो वैल्यूएबल है। और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर आपको नेक्स्ट जॉब मिलेगी, फर्स्ट जॉब मिलेगी, सेकंड जॉब मिलेगी, लास्ट जॉब मिलेगी। That's all dependent on your belief and I mean all on your motivation, because हम अपने आप को internally motivate जब तक नहीं कर सकते, हमें बाहर से वो motivation नहीं मिलेगी। जब आपके पास कोई पहली बार आता है, समझ लो कि वो फ्रेशर है, उन्हें कहीं जॉब नहीं की है, तो आप कैसे मदद करते हैं उसकी? क्या क्या देखते हैं उसमें? उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं और क्या उसको गाइडलाइंस क्या देते हैं? पहले तो हम देखते हैं कि बंदे में पोटेंशियल कितनी है, उसके एम्बिशंस क्या है, उसका पैशन क्या है, और हर चीज उसकी क्वालिफिकेशंस, उसके रेज्यूमे, उसके एक्सपीरियंस में शो हो जाता है। सो लाइक आई सेड, योर रेज्यूमे इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। और जब भी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं like where do you see yourself in the next 5 years, or like where do you see yourself in the next 10 years? So short term and long term goals. So ladies and gentlemen, be very sure on what you want to be, because a handshake can change your life. जी, और हम बात करें, अगर पहले भी मैंने बोला था कि कुछ लोग हैं जो सीधे चले जाते हैं किसी कंपनी के पास, तो वो बोलते हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस तो बहुत सारे लोग जो नए इमिग्रेंट आते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग जो डॉक्टर होते हैं इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं से भी आते हैं दुनिया में, और वो यहाँ पर उनको लेबर करनी पड़ती है। पहले कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, तो उसको बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? Well, ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगी कि certify yourself, get to know the Canadian job market, because थोड़ी सी different है जैसे back home से। हमारा जैसे working style थोड़ा different है, हमारी adaptability, flexibility थोड़ी different है। तो आप जितना अपने आप को educate कर सकते हैं उतना educate करें। Networking is the key to success in Canada, I would say, because PR, personal connections matter. जैसे आपने references की बात की, वो भी एक PR में ही आता है। तो आप जितने भी लोगों से connect कर सकते हैं करें। And then at the end of the day, you have to be flexible, you have to be adaptable, and you have to be ready to do anything and everything. Because companies यही मांगती हैं कि आप में team spirit कितना है। जैसे यहाँ पर seat power को believe नहीं किया जाता। Everybody is equal at the end of the day. And like we also live in a diverse multicultural country, so it's just about making your PR. रिदा, जैसे बहुत सारी
सोशल मीडिया पर बात कर लें, जहाँ टीवी पर या रेडियो पर ऐड चलती हैं लोगों की कि आप अपना हमारे पास आए, हम आपको प्रोफेशनल रिज्यूमे बना के देंगे आपको। और क्या इसका कोई फर्क पड़ता है लोगों के, क्योंकि क्वालिफिकेशन उसकी सेम होती है, उसका जो एक्सपीरियंस भी वही होता है। अगर वो उसके रिज्यूमे में थोड़े बहुत बनाने में कोई उसको कह लें कि अच्छा नहीं रिज्यूमे बना उसका, तो उसको जॉब में दिक्कत आती है, ऐसा होता है कहीं? ऑफ कोर्स जॉब आती है, बिकॉज आपके पास सालों का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, बट आपने प्रेजेंट ही ठीक तरह नहीं किया हुआ, उसकी अपनी फॉर्मेटिंग ही ठीक नहीं है, उसकी आपकी एडिटिंग ही ठीक नहीं है, उसका कंटेंट ही ठीक नहीं है, वो पढ़ने में अच्छा लग नहीं रहा। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, जैसे मैं आपसे मिली नहीं रही हूँ, बट मैं आपका रेज्यूमे देख रही हूँ, ये आपका नाम है, आप यहाँ पे रहते हैं, ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप आपके पास 6-7 का एक्सपीरियंस, so easy to read. So writing an effective resume is very important. It has objective, it has skills, it has experience, it has qualifications, it has your awards and achievements. So make sure it's well done. Because end of the day, आपका रेज्यूमे ही आपका वो एक मिडल पॉइंट है जो आपको एक रिक्रूटर से और आपको मैनेजर से मिलाता है। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो रिक्रूटर है हमारे लिए ये अच्छा है? कहाँ जाए वो, क्या मैसेज, क्या सलाह, क्या देनी चाहोगे आप? आई थिंक कनेक्ट करें सारे जितने भी रिक्रूटर्स हैं, कितने सारे टूल्स हैं ऑनलाइन है, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, और आप जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, दे कैन आल्सो कनेक्ट विद मी। आई हैव माय ओन लिंक्डइन पेज, आई हैव माय ओन फेसबुक पेज इन द नेम ऑफ वीरा चौहान। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई आपको रेज्यूमे रिव्यू की हेल्प चाहिए, surely we can connect, and it's all out of courtesy, it's all out of volunteer. I mean, it is a charge towards it too, मतलब कोई लोग चार्ज करते हैं as a side business, but जो अच्छे, जो वाकई में आपको हेल्प देना चाहेंगे, वो आपकी really हेल्प करेंगे। तो it's all about connecting and it's all about networking. जैसे पहले इंटरव्यू होती थी, जब लोग अपने फील्ड में जाते थे, मोस्टली जो प्रोफेशनल जो हैं, आईटी की बात कर लें, तो उनकी फेस टू फेस इंटरव्यू होती थी। तो उसमें जज करना, जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, उसको एक दूसरे को समझना अच्छा लगता था, जल्दी समझ लेते थे। अब कैसा चल रहा है कि फेस टू फेस तो इंटरव्यू हो नहीं रही? अभी आई थिंक फेस टू फेस भी सेम है, जैसे स्काइप इंटरव्यू है, जूम का इंटरव्यू, इट्स एग्जैक्टली द सेम प्रोटोकॉल, एग्जैक्टली द सेम एक्सपेक्टेशंस एज लाइक अ फेस टू फेस इंटरव्यू। जैसे आपकी प्रोफेशनल अटायर होनी चाहिए, आपको प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए, आपकी जो वर्ड्स, आपका कंटेंट बिल्कुल ही प्रोफेशनल होना चाहिए। तो कोई डिफरेंस नहीं है फेस टू फेस और उसमें, इट्स एग्जैक्टली द सेम एक्सपेक्टेशंस। इट्स जस्ट कोविड करके वो हम जूम और स्काइप पर अभी सारे अपने इंटरव्यूज लेके जा रहे हैं, बट द एक्सपेक्टेशंस आर एग्जैक्टली द सेम. But you have to be a professional, show that you are worthy of that job, because again competition है ना, और you have to beat that competition. रिजल्ट जैसे अभी तो ब्रेक लगी हुई, नए इमिग्रेंट नहीं आ रहे हैं। पहले जब नए इमिग्रेंट आते थे, जहाँ जो अब थोड़ी देर फिर खुलेगा तो आएंगे लोग, नए आएंगे, तो उनके लिए होता है कि हमें कोई भी जॉब मिल जाए। यहाँ पर आते ही वो जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वही बात फिर आती है कि उसका जो फील्ड होता है उसमें उनको जॉब नहीं मिलती, जहाँ वो सर्च नहीं कर पाते, उसको मालूम नहीं पड़ता। एक दफा वो ये सोचते हैं कि बस जो मर्जी जॉब मिल जाए, लेबर की मिल जाए, हमारे थोड़े बहुत खर्चे जो वो चलने लगे। तो इसी चक्कर में वो अपने 1-2 साल खराब कर लेते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि आप थोड़ा वेट कर लो और अपने फील्ड में ही जाओ कि आपका समय बर्बाद ना हो? और क्या करना चाहिए उनको, वो कहाँ सर्च करें कि उनको सही दिशा मिल जाए? मैं तो अपने सारे कैंडिडेट्स को यही बात बताती हूँ कि कोई भी जॉब छोटी और बड़ी नहीं होती। एक टाइम आता है जब आपको अपनी फील्ड में जॉब मिलती है। जैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बट उनको फील्ड में जॉब नहीं मिलती, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। बट कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। अपने आप को जितना आप कस्टमर सर्विस में एनहांस कर सकते हैं, उतना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स, योर आई मीन लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स एट द एंड ऑफ द डे are with you forever, right? And then in every job, every job looks for customer service skills. तो कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, बस आपका घर चले, आपके खर्चे चले। But one day comes where you have to enhance yourself with like certifications at the same time. तो side by side अपनी फील्ड भी देखें और साइड बाय साइड वो भी करें जो सारे करते हैं, बिकॉज इट्स अ मल्टीकल्चरल कंट्री। और यहाँ पर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि तुम छोटे लेवल पर लगे हो, तुम बड़े लेवल पर लगे हो।
इट्स ऑल अ मैटर ऑफ माइंडसेट कि हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उस जॉब में भी आप बहुत कुछ सीखते हो, नए दोस्त बनाते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो कोई भी जॉब छोटी नहीं होती। और मैं तो मतलब लाइक मेरे जो दिल में आई हैव लाइक हाई लाइक रिस्पेक्ट फॉर द पीपल हु वर्क लोली डिस्पाइट बीइंग हाईली क्वालिफाइड, बिकॉज उनको पता है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एंड दैट्स द रियल फ्लेक्सिबिलिटी, दैट्स द रियल अडेप्टेबिलिटी। रिदा, अब बहुत सारे लोगों की जो जॉब है वो लॉस्ट हो चुकी है, जॉब नहीं है, घर में बैठे हैं, तो वो इंटरनेट पर जॉब सर्च करते हैं, तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है उनके लिए? कहाँ जाएं वो कि उनको जॉब, अच्छी जॉब, अच्छी नहीं कोई भी जॉब जो जहां भी वो जाना चाहते हैं? जैसे मैं देखता हूं कि मुझे इंडीड की बहुत सारी जो मैसेज आते रहते हैं, और ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जहां जाकर वो जॉब सर्च कर सकते हैं? आई थिंक लिंक्डइन लोग बनाएं और लिंक्डइन पर अपने सारे प्रोफेशनल ऐड डालें, अपनी क्वालिफिकेशंस डालें, और लिंक्डइन पे भी जॉब्स आती हैं, और लिंक्डइन पर हमारे पूरा प्रोफेशनल नेटवर्क है ह्यूमन रिसोर्सेज का, जो हम रिक्रूटर्स फाइंड करते हैं अपने आप को। तो लिंक्डइन आपका एक वर्चुअल रेज्यूमे आप उसको एज अ प्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपके पास फेस टू फेस नहीं तो वर्चुअली अपने आप को वैसे प्रेजेंट कर सकते हो, एंड देन रिक्रूटर्स डू कॉल यू फ्रॉम लिंक्डइन। तो जैसे मैं जितनी भी हायरिंग करती हूँ, मैं पहले जाके देखती हूँ, अच्छा यार ये कैंडिडेट लिंक्डइन पर है या नहीं है, तो लिंक्डइन पर जाए, वहां पर हजारों जॉब्स हैं, there's Indeed, there's Workopolis, there's so many search engines, but अगर आपके पास एक स्पेसिफिक कंपनी है तो उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, उनका आप करियर सेक्शन पर जाएं, उधर सब डिटेल्स आपको मेंशन होंगी, but I would say LinkedIn is the best bet because LinkedIn is strictly professional. अब इस समय आप ऑफिस में जा रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं? We're working from home now. अगर आपसे किसी ने संपर्क करना हो तो कैसे कर सकते हैं? Well, like you guys can follow me on LinkedIn, Facebook, Instagram. Also, I have my personal contact number, and you can send me an email. वैसे तो emails पे सारी बात होती है because email is more professional. But अगर किसी को contact करना है, then surely they can have my phone number. सरिता, हमारा जो समय है वो भी समाप्त होने वाला है। जाते जाते आप के दिमाग में कोई और चल रहा हो, कोई बात रह गई हो मेरे से पूछने वाली और आप बताना चाहते तो आप बता सकते हैं, क्या कहना चाहते? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये बस हमारे ऊपर एक टेस्ट है, हमारे ऊपर एक जैसे एक आजमाइश आप कह लें हमारे ऊपर आई हुई है, बट लाइफ इज ब्यूटीफुल। जस्ट थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। We have 214 days, 7 months still left. Just keep networking, keep like connecting with your family and friends. Most of all, keep safe at home, but just restart, refocus and readjust, because we're gonna go to work very soon, but with a positive mindset. So ये हमारे लिए टाइम दिया गया है। मैं तो ऐसे देखती हूँ कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें, हम अपनी गलतियों पर वर्क कर सकें, हम ज्यादा पॉजिटिव हो सकें, बिकॉज जिंदगी हमें एक चांस देती है इम्प्रूव करने का। तो दिस इज अ टाइम टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ बिगर एंड बेटर वर्जन, एंड गाइस नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, स्पेशली ऑन योर ड्रीम्स। वो जॉब मिलेगी, वो गाड़ी मिलेगी, वो घर मिलेगा, वो हर चीज मिलेगी जो हम चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट बीइंग पॉजिटिव एट द एंड ऑफ द डे, नेवर गिविंग अप इन लाइफ। थैंक यू सो मच रिदा, आप आए तो बहुत सारी बातें की। लगता है कि हमारे दर्शकों को जो आज की हमारी बात थी, जो हमने डिस्कस की, उससे बहुत सारा फायदा भी होगा। और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूं कि रिदा एक प्रोफेशनल है, और किसी को जॉब चाहिए, किसी के पास जॉब नहीं है, तो आप रिदा को डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। जो उन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया पर रिदा चौहान, केसी चौहान, जो उनके फेसबुक पर पेज हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर है, जहीं भी आपको रिदा चौहान मिलती है वहां उसको मैसेज कर लें, वो आपको रिप्लाई करेंगी। और ये भी मैं बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं लगभग 3.5-4 साल से मैं रिदा को और केसी चौहान को जानता हूँ, मिलता रहता हूँ। एक प्रोफेशन में तो काम करते हैं लोग, लेकिन जो सोशल वर्क इनका है, इनकी मदर का और रिदा का, उसको सल्यूट करना बनता है। वो जहाँ भी आप जाओगे तो हर वक्त उन लोगों की जो मदद करते हैं, कहीं भी जो जाते हैं तो आपको रिदा चौहान और केसी चौहान पहले मिलती है, और हंसते चेहरे से मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है, एनर्जी मिलती है इनको देख के, इनसे बात करके। सो होप बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। रिदा से बात करो आप,
ठीक है रिदा, हमारी फिर बात होगी। नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे कुछ नया लेकर आने की। Well, thank you so much. ठीक। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਿਦਾ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਬ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਮੇ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਮੇ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ।